स्ट्रेट लाइन, ये टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे थे। Yes, sir. What is the point object? How you define the point object? गुड मॉर्निंग सर। Point object को कैसे डिफाइन करेंगे आप? Those object which is dimensionally negligible. Sir, वो respect- dimension is negligibly in respect of this provided. Yes, good. Such type of object whose dimensionally is negligible in respect of distance covered by length is called point object. Good. Such type of object whose dimension is negligible in respect of distance covered by them. बिल्कुल सही है, 100% सही है। गुड। नाउ तो हम लोग कोई स्टडी कर रहे थे मोशन इन 1 2 एंड 3 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन तक कल हो गया था ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Now motion in 3 dimension. Motion in 3 dimension. If all these 3 coordinates, if all 3 coordinates are required to specify the position of an object, then the motion is called motion of the body is called in 3 dimensions. Motion in 3 dimensions called motion in 3 dimensions. Okay, that if all 3 coordinates, in x coordinate, this one, and this one, if all these 3 coordinates are required to specify the, if all 3 coordinates are required to specify the position of an object, required to specify the position of an object, then the motion of the body is called in 3 dimensions. Can you give the example? A flying kite, Yes, sir. Movement of a flying bird, aeroplane. Movement of Flying kite, sir. Yes. flying kite. Pendulum. Flying bird, Flying kite, sir. Yes, sahi hai. Flying kite. Okay. Flying aeroplane in the sky. Nahi? Yes, sir. Yes, sir. That means this motion in 3 dimensions always takes place in a space. It always takes place. It always takes place in space. Motion in 1 dimension always takes place in a on the road. Plane. 2 dimension it always takes place in a plane, and 3 dimension in the space. अच्छा, ये motion of aeroplane in the sky, तो कैसे हम बताएंगे कि तीनों कोऑर्डिनेट इसमें आ रहा है x y z, या मोशन ऑफ काइट, कुछ भी एनीथिंग जो भी हमारा फ्लाइंग थिंग जो फ्लाई कर रहा है इज द एग्जांपल ऑफ मोशन 3 डायमेंशन। नहीं, चाहे बर्ड बोले, चाहे काइट बोले, चाहे हम एरोप्लेन बोले,
ये कैसे पॉसिबल है कि तीनों एक्स वाई जेड तीनों ये बता सकते हैं कोई इनको? सिर्फ रट लेने से तो नहीं काम चलेगा ना कि हम रट लिया आंसर बोल देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। उसको हमको समझना होगा ना। ये सब रटने वाला काम 9-10 तक होता है कि रट लिया तो, लेकिन +2 में रटने का चीज नहीं है। कि इसको कैसे, आपने कहा सभी ने सही एग्जांपल दिया मुझको, लेकिन ये कैसे है ये बता सकते हो? एनीवन? सर क्योंकि हर तीनों तरफ से फोर्स लग रहा है। नहीं नहीं। अंकित कुमार सिंह 11B। यस सर। जल्दी बोलो बच्चे मेरा, तुमको तो 9-10 भी सर ये हम पढ़ाए हैं नहीं एडजस्टमेंट क्लास में। यस सर। यस सर। सर ये तीनों कोऑर्डिनेट से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे है। नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ। और कोई एनीवन? सर ऑब्जेक्ट के अराउंड स्पेस है। यस, क्या बोले बाबू? प्रियांशु क्या सर बोला? ऑब्जेक्ट के अराउंड में स्पेस है। हाँ, और कुछ बता सकते हैं? ये एक्सप्लेन नहीं हुआ, जो मैं बताता हूँ। और कोई है बताने वाला? चलो मैं बता रहा हूँ, देखो। Suppose that this is a ground. ठीक है? This is a ground. An aeroplane is here. Okay? Aeroplane is here. This one is a height h. This one is the length. And this one is the breadth. This one is the breadth. What? This is समझिए। यस सर। Suppose that this is aeroplane. ये fly कर रहा है, ठीक है? अब from the this one is the frame of reference. This is the surface of Earth. तो इस surface से इसका height है ना ये? यस। ये हाइट हो गया? Yes, sir. Yes, ठीक है? अब इसका ये लेंथ हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये ब्रेथ हो गया ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तीनों चीज आ गया ना? तुम्हारा लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यानी एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट आ गया ना? यस। Yes, sir. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये ऑल दिस थ्री थिंग्स आ गया हमारा उसमें। दैट मींस ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है और जेड कोऑर्डिनेट है। इसी को तो बोलते हैं हम लोग ना मोशन इफ ऑल दीस थ्री कोऑर्डिनेट्स, यानी h हो गया, l हो गया और ये b हो गया हमारा। इफ ऑल दीस थ्री कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसको स्पेसिफाई कर रहा है ना, कहां से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। All these three coordinates are required to specify the position of an object. Then the motion is called three dimension. 3 dimensions. Clear work? It always takes Yes, sir. the space. Example लिख लीजिए, flying kite, flying bird, सभी का एग्जाम्पल लीजिए। काइट है, वही हाइट हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया। So this is the motion in three dimensions. एग्जाम्पल रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। क्या? सर एग्जाम्पल रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। एग्जाम्पल हो गया फ्लाइंग एरोप्लेन, एरोप्लेन इन मोशन, मतलब हो गया फ्लाइंग एरोप्लेन, फ्लाइंग काइट, फ्लाइंग बर्ड, etc. तो जो भी स्पेस में फ्लाई कर रहा है, these are the example of motion in three dimensions. सर मून का क्या होगा? इसके साथ आवाज नहीं क्लियर हो, नहीं सुन पा रहे हैं। सर मून का क्या डायमेंशन होगा? सर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हो सकता है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्स वाई जेड डायरेक्शन में तीनों, जिसमें भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा जो स्पेस में होगा, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ मोशन थ्री डायमेंशन।
उसके लिए हाइट चाहिए, लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए, ठीक ना? सर प्लैनेट सर भी आ सकता है इसमें सर प्लेन वाले में लेंथ क्या है और ये कौन से कोऑर्डिनेट में है? कौन सा ब्रेथ और हाइट इसमें प्लेन में? एक्स कोऑर्डिनेट। प्लेन में? यस सर। ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो ये लेंथ हो गया ना भाई, ये लेंथ हो गया, ये Yes, इसका sir. ब्रेथ हो गया ना, और Yes, यहाँ sir. सरफेस ऑफ अर्थ से इसका हाइट है, ये हाइट है। यस सर। यस सर। तो सर इसी में ये कोऑर्डिनेट्स इसके क्या होंगे? सपोज लेंथ का मतलब कि एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट किसी एक एक्सिस पे ले लेंगे, किसी को भी किसी एक एक्सिस पे ले लेंगे, तीनों चीज आ गया ना भाई, लेंथ ब्रेथ और हाइट आ गया ना हमारा। यस सर। किसी को एक नो रैंडमली हो चुका है। हाँ कोई नाउ नेक्स्ट टॉपिक, distance and displacement. Distance and displacement. Suppose that यहाँ पर कोई विजिटर x है, क्या बैठा हुआ, ठीक ना? और इस यहाँ पे एक कोई अनदर है, अब इस बंदर को यहाँ तक पहुंचना है, ठीक ना? There are so many ways. एक क्या डायरेक्ट इधर चला गया, ये गया इधर से इधर इसके पास चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ आ गया हमारा, फिर ये इधर एक चला गया, फिर इसके पास गया, लास्ट में यहाँ पहुंच गया, यानी अल्टीमेटली उसको पहुंचना है वहीं पे, नहीं? आप क्लास में बैठे होते हो, मान ली किसी को आप तक पहुंचना है, सो मेनी वे, मान लो बीच वाले रो में बैठे हुए हो, तो एक इधर से घूमते हुए गया आप तक पहुंच गया, इधर से घूमते हुए गया आप तक पहुंच गया, और एक डायरेक्ट चला गया, यानी तीनों तरह से पहुंच सकते हैं आपके पास। तो ये जो लेंथ कवर्ड किया, ये जो लेंथ कवर्ड हुआ, ये दिस वन, ये दिस वन, ये इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस अब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किया तो जो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। Distance, the total length covered by the body. Just write down the total length covered by the body. The total length covered by the body is called distance. The total length covered by the body is called distance. The total length covered by the body is called distance. SI unit meter. SI unit meter. SI unit meter. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. किसके घर से ये आवाज आ रही है? आप अपनी आवाज अपने तक रखो ना, दूसरे को क्यों सुना रहे हैं आप? ये आपकी आवाज रिकॉर्डिंग भी हो रही है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, और आपकी ये आवाज YouTube पे भी डाली जा रही है। तो सोच लीजिए कि सब लोग क्या बोलेंगे आपके बारे में।
इसलिए जहां पे ये जरूरत नहीं, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट नहीं समझना चाहिए। स्मार्ट समझना है तो पढ़ाई भी स्मार्ट समझो ना। ओके, नाउ कम बैक। इसलिए जहां पे जरूरत नहीं हो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपने घर की आवाज दूसरे को ना सुनाएं। ओके, कम बैक। Distance, the total length covered by the body is called distance. Its SI unit meter. It is a scalar quantity. Its dimensional formula m naught L1 T naught. Okay, now next displacement. Displacement. The shortest distance traveled by the body. The shortest distance traveled by the body. The shortest distance traveled by the body is called displacement. The shortest distance traveled by the body is called displacement. सर नोटेशन डिस्प्लेसमेंट का एस से भी करते हैं, एक्स से भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, वाई से भी कर सकते सर हैं, डिस्टेंस का दोनों का सेम होता है। वाई से भी इसका हम लोग करते हैं, ओके सर एस और एक्स और वाई। यस, ऐसा ही दोनों का सेम होता है, मीटर, and it is a vector quantity. Displacement is a vector quantity. Displacement may be positive, negative, and zero. Displacement may be positive, negative, and zero. In circular motion, the displacement always zero. In circular motion, the net displacement is zero. सर फिर से बोलिएगा। सर्कुलर के बाद क्या बोले? क्या बोल रही हो? सर इन सर्कुलर के बाद क्या बोले? Motion, the net displacement. In circular motion, the net displacement is always zero. यस सर। Speed. Next. Speed. सर स्पीड और वेलोसिटी सेम ही है ना? नहीं, वेलोसिटी अलग है। वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। ओके सर, थैंक यू सर। Speed. The distance traveled per unit time is called speed. Distance traveled per unit time is called speed. Mathematically, V equal to S by T. Mathematically,
V equal to S by T. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Its dimensional formula m naught L1 T minus 1. सर स्पीड को भी v से इंटोनेट करते हैं. Velocity mathematical formula S by T. It is a scalar quantity. सर s या डिस्प्लेसमेंट है ना. S डिस्प्लेसमेंट भी होता है, डिस्टेंस भी होता है, ठीक ना. यस सर. सिंबल दोनों के लिए एक ही होता है. V equal to S by T या हम D by T भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. यस सर. It is a scalar quantity. Its dimensional formula m naught L1 T minus 1. Times Uniform. uniform speed. First type is the uniform speed. अब देखो इसको रटने की जरूरत नहीं, मैं लगातार बोल रहा हूँ तो फिजिक्स रट के नहीं पढ़ते. अब इसको क्लियर अपने नाम से क्लियर हो जा रहा है. नहीं, what is the meaning of uniform? What is the literally meaning Equal. of equal? Equal distance cover in equal interval of time. अब देखो यहाँ पर हमें uniform Constant. बिल्कुल सही है. यूनिफॉर्म का भी मीनिंग पता है, स्पीड का भी मीनिंग पता है. इसको हम अपने लैंग्वेज बोल सकते हैं. नहीं, such type of object, if any object covers equal distance in equal interval of time, then it is called uniform speed. Uniform अब space. meaning सिर्फ पता होना चाहिए. What is the meaning of that term? और उसके लैंग्वेज में लिखेंगे. कोई जो नहीं है कि हम बुक के लैंग्वेज को नोट डाउन करें या बुक के लैंग्वेज में आंसर लिखे अपने एग्जाम में. कोई जरूरत नहीं है. आपका टू द पॉइंट होना चाहिए, बस लैंग्वेज आप चेंज कर. So uniform speed, if any object covers, if any object covers equal distance in equal interval of time, then the speed is called uniform speed. If any object covers equal distance in equal interval of time, then the speed is called uniform speed. सेकेंड होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. Non-uniform speed. Again, it is very clear from the name. Non-uniform मतलब वो इक्वल नहीं होगा. इक्वल क्या नहीं होगा? इक्वल डिस्टेंस interval. या तो स्पीड होगा. नहीं, कॉन्सेप्ट ये है. फिर कॉन्सेप्ट को समझिए. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो इक्वल नहीं हो. तो इक्वल क्या नहीं हो सकता है? या तो डिस्टेंस इक्वल नहीं हो सकता है. नहीं, डिस्टेंस या टाइम इक्वल नहीं हो सकता है, या फिर दोनों इक्वल नहीं हो. हाँ, दोनों नहीं होगा. तो इसको हम अपने लैंग्वेज डिफाइन कर सकते हैं. If any object covers, just write down. If any object covers equal distance in unequal interval of time, or
vice versa. Then the speed is called non-uniform speed. Then the speed is called non-uniform speed. If any object covers equal distance in unequal interval of time or vice versa, then the speed is called non-uniform speed. Instantaneous. Instantaneous speed. Instantaneous speed. What is the meaning of instant? Instantaneous. For a small interval of certain time. interval of time, at certain point of time. Instant at particular moment, नहीं? Instant At any instant of time. जैसे बोलते हैं At any- instant coffee. Instant coffee बोलते हैं ना, यानी particular कप. तो instantaneous speed यानी क्या हुआ? Speed at particular time. Speed at particular moment. Speed at particular moment is called instantaneous speed. अब जैसे देखो बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है ना. Yes, Yes, sir. yes, sir. बाइक में जो लगा होता है ना स्पीडोमीटर लगा होता है बाइक में या फोर व्हीलर किसी में भी होता है. जब हम चला रहे होते हैं तो अचानक स्पीड कम करते हैं ना. क्यों कम करते हैं? देखते हैं कि अरे मेरा स्पीड तो 100 प्लस आ रहा है तो उसको फिर स्पीड को हम एक्सीलरेटर को कम करते हैं. क्यों कम करते हैं? एट पर्टिकुलर टाइम वो चेक करते हैं कि स्पीड तो क्या है. अगर स्पीड ज्यादा है तो हम लोग कम करते हैं. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हुआ? स्पीड एट एनी इंस्टेंट. दिस इज कॉल्ड. अब बाल का नोचना बंद हो गया हो तो पढ़ाई भी कर लेते. ओके. Instantaneous speed, the speed of an object at any instant is called instantaneous speed. And mathematically it is written as v equal to ds by dt. This is a formula for instantaneous speed. V equal to ds by dt. Next, average speed. Average speed. The ratio of total distance. सर स्क्रीन विजिबल नहीं है. Visible नहीं है. नो सर आपका आवाज आ रहा है बार बार. किसी और का आ रहा है. मेरी आवाज तो ऑडिएबल है. समंदर दिख रहा है. ऑडिएबल मेरी आवाज आ रही है आप तक. यस सर अर्नव दिख रहा था. आगे सर आगे. अब दिख रहा है सर. ओके ओके मैं फिर लिख रहा हूं. सर इंस्टेंटेनियस स्पीड से फिर से बताइए ना. बिल्कुल है. यस Yes, सर. sir. इंस्टेंटेनियस बताइए ना. सर
हमारी आवाज क्लियर नहीं हो रही, क्या बोल रही हो? सर सर इंस्टेंटेनियस स्पीड का फिर से बताइए। फिर से बताइए ना। Okay. Speed of an object at any instant. Speed of an object at any instant is called instantaneous speed. Speed of an object at any instant. Speed of an object at any instant is called instantaneous speed. Mathematically is written as v equal to ds by dt. v equal to ds by dt. सर ये d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये the rate of change. d by ओके dt मतलब the rate of change with respect to time. और d के साथ s जुड़ा हुआ है. The rate of change of distance per unit time. Okay. Example लिख लीजिएगा. Speedometer of bike measure the instantaneous speed. Speedometer of bike measure the instantaneous speed. Example लिख लीजिएगा. Speedometer of bike measure the instantaneous speed. Okay, now average speed. The ratio of total distance covered by the body. The ratio of total distance covered by the body to the total time taken. Is called average speed. सर कवर्ड बाय द बॉडी के बाद Total time taken. सर फॉर्मूला में क्या लिखे हैं? तो नीचे वाले बता दो. VAB equal to total distance by total time. सेकंड में लिखे हैं टोटल डिस्टेंस को d से डिनोट करते हैं ना हम लोग. कैसे? यस सर. d1 plus d2 plus dot dot divided by t1 by t1 plus t2 dot dot. d1 plus d2 plus dot dot total distance divided by total time t1 plus t2 plus dot dot. एवरेज स्पीड में एक क्वेश्चन बनाइए तो जस्ट राइट डाउन ए क्वेश्चन. A person is going towards the market from his residence. With the speed of सर एक बार बोल के बताइए ना, पता नहीं चल रहा है. okay. Yes, sir. A person लिख नहीं रहा सर. A person is, मैं साथ साथ बोलते चल रहा हूँ. A person is going toward the market from his residence. A person is going toward the market from his residence
with the speed of 60 km per hour and return back market to residence and return back from market to residence with the speed 40 km per hour. Find the average speed. सर 50 किलोमीटर पर आवर. गलत है. Sir, 48 kilometers. 48, sir. Sir, 48. Sir, 48 kilometer per hour. हाँ सही है. Sir, 48 sir, 48 किलोमीटर पर आवर. सही है. वो जो बनाया उसको डिस्प्ले करके दिखाओ. जो बनाए हैं आप उसको डिस्प्ले करके दिखाइए. वीडियो दिखाइए, उसका शेयर कीजिए. Okay, if person is going towards, sorry aside, just listen. A person is going toward the market from his residence with the speed of 60 km per hour and return back from market to residence with the speed 40 km per hour. Find the average speed. Sir, 48 किलोमीटर पर आवर. उनको शेयर कीजिए, दिखाइए कैसे बनाए आप. वीडियो शेयर कीजिए उसका, कैसे बनाए आप. ओके, थैंक यू.